Okay, you will take sankalp that whatever badha is there in your life, whatever obstacle is there, that should go away. You are praying for your obstacles to go away. When you are praying for badha nivaran, जैसे नींबू लेके, don't take a thing in your hand and hey भगवान ये हटा देना. Not like this. You should actually sit like a warrior with your back straight, with full determination, and then pray to God that God help me and remove this from my life. That determination will then reflect in your chanting. It will reflect everywhere. Otherwise, if you're sitting like this, then there is no point. Be very firm, be very clear, be very strong about what you want in life. If your willpower, if your clarity towards your goal, that is not, then you will never realize your goal. And this is what happens to most of the people. Or kuch nahi, no matter what has happened to you in life, at least after this, you should have a good life. That should be a sankalp. Right? So for that, be very strong. Be like Bajrangbali. We are doing Bajrangbali sadhana. We are not doing some other sadhana. We are doing Mahavir sadhana. So you should actually feel like Mahavir. You should feel like Bajrangbali. Guru Gobind Singh, he used to say, when I used to go, I am from Guru Nanak school, and otherwise also my husband was in the army, so we used to go to all the Guru Purab celebrations. Guru Gobind Singh used to say that a warrior only can be a saint. Because if you cannot fight against obstacles, if you cannot fight against unnecessary rituals or blind superstitions, you really cannot become spiritual. You cannot become one with God. So many of the things that you think are, traditional, this is how it should be, they're all hogwash, mambo jambo. It is only when you realize, when you understand, when you start questioning, why am I doing this? What is the point of all of this? Only then will you realize God. When you start taking out time every day for God realization, for self-realization, only then will you realize God. And when you start taking time out every day for self-realization, there will be so many obstacles. I'm not even talking about physical obstacles. There'll be so many obstacles of different types. Everybody, please mute yourself. Okay. Now coming back to today. Today is Saturday. Saturday is a very important day. Lord Hanuman, as I told you, is already associated with 6 grahas, actually 7 grahas, but we will only do 6 grahas now. So 6 grahas. And today is Saturday. Saturday is the day allocated to 3 grahas. Rahu, Ketu and Shani. पहले मैं हिंदी में बता देती हूँ, फिर मैं आप लोग को इंग्लिश में भी समझाऊंगी. शनिवार का दिन है आज का. हनुमान जी मैंने जैसे कि बताया कि 6 ग्रहों से संबंधित है, और 6 ग्रह जो है उनकी पूजा से प्रसन्न होते हैं, उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होते हैं. आज का जो दिन है, शनिवार का जो दिन है, ये 3 ग्रहों को दिया गया है, शनि, राहु, केतु. और ये तीनों ग्रह जो है, ये तीनों ग्रह कैसे हैं सबको पता है. शनि राहु केतु की महादशा में कोई नहीं बचता, सबको ही पता है, चाहे वो कैसा भी हो, कहीं ना कहीं तो वो आपको मारेगा ही मारेगा. और शनि जहां भी, शनि की जो मार होती है वो हमेशा इंसान को अध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए होती है. राहु की जो मार होती है वो अध्यात्म से परे लेकर जाती है, बट ये लोग समझ नहीं पाते. केतु फिर से आध्यात्मिक बना देता है, बट राहु जो होता है, अगर आप राहु के झांसे में आ जाते हो तो वो आपको अध्यात्म से भगा देता है. वो आपको इतना भूखा कर देता है किसी भी चीज के लिए कि आपकी जो है सोच समझ चलता नहीं, वहां पे दिमाग काम करना बंद कर देता है. तो इनके जो दुष्परिणाम है उससे बचने के लिए हनुमान जी की आराधना बहुत जरूरी है. पर इतने जो स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं, और राहु केतु को छाया ग्रह बट ग्रह है, इतने जो स्ट्रॉन्ग ग्रह है, स्पेशली राहु केतु, जो सूर्य का भी ग्रहण कर देते हैं, चंद्रमा का भी ग्रहण कर देते हैं, ये आपके एकदम ढीले ढाले बैठने से, आवाज नहीं निकल रही गले से, ऐसे जपने से कुछ नहीं होने वाला है. तब आप लोग को एकदम वज्र जैसा बनना पड़ेगा. ठीक है, एकदम महावीर बनना पड़ेगा. इसीलिए हनुमान जी बैठते भी किसमें, वीर आसन में. कभी हनुमान जी का पोज देखा आप लोगों ने? उस पोज में बैठो. मैंने फर्स्ट डे पे बोला था, पहले दिन मैंने बोला था कि आप लोग हर दिन कम से कम 5 मिनट वज्रासन में बैठने की आदत डालेंगे.
किसने किसने किया? मैंने बोला था 5 मिनट वज्रासन में बैठना है और दिए पे त्राटक करना है, इसमें से किसने किया? किसी ने भी नहीं। मैंने की। You did it. You have a bad back, but anybody else? किसी ने नहीं किया? दीदी मैंने बैठने की कोशिश की थी थोड़ी, लेकिन दिक्कत हो रही थी। ठीक है, मैं कर बट रही वो थी। थोड़ा थोड़ा रोज किया कि नहीं किया? 1 मिनट भी किया तो रोज किया कि नहीं किया? नहीं, Yes, कल I ही did. किया थी मैंने। दीदी, आई एम डूइंग। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सो हनुमान जी वीरासन में बैठते, वज्रासन में भी नहीं, सीधा वीरासन में बैठते। और वीरासन में क्यों बैठते? अगर आप वीरासन का पोज ध्यान से देखो, जब आप रनिंग करने जाते थे ना, जब हम लोग स्कूल में, याद है वो स्पोर्ट्स डे के टाइम पे रन करते थे, तो हम लोग ऐसे बैठते थे नीचे जमीन पे, एंड देन होता था ऑन ए मार्क गेट सेट गो। वो जो एक पोजीशन होता था हमारा नीचे से ऊपर जाने का, जब तक हम भागना शुरू करते थे, अगर आप ध्यान से देखो वही वीरासन है। याद आ रहा है कुछ बचपन में हम लोग कैसे बैठते थे? एक पैर ऊपर उठाते थे, एक पैर नीचे होता था, फिर जस्ट वेट करते थे कि कब ये गो होगा और हम लोग खड़े होके भागेंगे। तो ये जो ये गेट सेट गो वाला जो पोजीशन है, हमेशा रेडी इन एक्शन, ये वाला जो पोजीशन है, हमेशा तत्पर है जो सेवा करने के लिए, जो काम करने के लिए, ये वाला जो आसन है, ये है हनुमान जी का वीर आसन। अगर आप लोग, तो पहली बात तो मतलब इसका मतलब कि आलस से तो बिल्कुल हनुमान जी के साथ चलता ही नहीं है। आप लोगों को हमेशा तैयार होना पड़ता है कि कब क्या करना पड़ेगा। ये होते हैं हनुमान जी, ये है वीरासन का मतलब। आप लोग कभी समझो कि लक्ष्मी माँ को एक जगह पे क्यों बिठा दिया शांति से, दुर्गा माँ को शेर के ऊपर क्यों बिठा दिया, और शिव जी तो एकदम ही अलग है। कल मैं बात करी थी विमल से, सात्विक, तामसिक, राजसिक, शिव से बड़ा ऊपरी तामसिक कोई नहीं है। जो भस्म लगा के बैठता है उस तरह तामसिक कौन हो सकता है? शुद्धि की तो बात ही नहीं है। पर शिव से ज्यादा सात्विक और कोई देवता मुझे तो नहीं दिखता है कार्य में। अपने कार्य में जो उन्होंने लाइफ में किया, जो जो वो करते हैं, उनसे ज्यादा सात्विक कोई है ही नहीं। और बाकी जो देवता जो बाहर से बड़े सात्विक लगते हैं, उनसे ज्यादा राजसी काम किसी और ने नहीं किया। कभी आप लोग अंदर समझो, ये नहीं कि मैंने ये बुक में पढ़ा और यही सच्चाई और यही होता है, नहीं। इसीलिए वॉरियर, वॉरियर मतलब जो अपना रास्ता खुद चुनता है, जो सारी चीजों को जो है क्वेश्चन करता है और अपना नया रास्ता बनाता है। भीड़ के साथ कभी नहीं चलता, वो हमेशा अकेला होता है। गुरु सारे परमहंस होते हैं, हंस हमेशा अकेला चलता है। दिमाग तो लगाओ, क्वेश्चंस तो पूछो कि ये क्यों भगवान, यार हनुमान जी वीरासन में क्यों बैठे हैं? और फिर जब मैंने बोला कि वज्रासन में बैठना, तो मैंने क्यों बोला? मुझे क्या आप लोग का वेट लॉस करवाना था? क्योंकि आप लोग जब बैठोगे ऐसे, तब आप लोगों को जो एनर्जी जनरेट होती है, तब आप लोगों के जो अनुभव होते हैं, आप लोग को समझेगा यार मैंने क्यों बिठाया। वरना थियोरटिकली मैं आप लोग को सब बता दूंगी, अभी बता दूंगी, अरे वीरासन में बैठने से ना ये होता है, आप लोग भी समझ लोगे। कभी आप लोग बैठने वाले हो नहीं, जो उसका अनुभव होता है, जो अनुभव गम्य ज्ञान है ना, वो आप लोगों का अटक जाता है। इसीलिए पढ़ाने से ज्यादा मेरा ये होता है, आप लोग बैठो, उस आसन में बैठो, ध्यान में बैठो, तब आप लोगों को जाके समझ में आएगा कि भैया ये हो क्यों रहा है, ये किया क्यों हम लोगों ने। ठीक है, अब हमारे पास मुश्किल से 4-5 दिन रह गए हैं। अब आप लोग रोज वीरासन या वज्रासन में बैठने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं वापस से शनि राहु केतु पे। जो कथा है वो ये है कि रावण को किसी ने बोला कि शनि देव जो है आपको परेशान करेंगे, तो रावण ने क्या किया, शनि देव को उठा के अपने एक महल के कमरे में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। जब हनुमान जी गए वहां पे, रावण ने बोला जब ये हिल ही नहीं सकता, यहाँ से निकल ही नहीं सकते, तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है। और हनुमान जी जाते हैं जब लंका जलाने, तो उनको ये आदेश मिलता है कि आप जो है शनि देव को उनके बंधन से मुक्त कराओगे, और क्योंकि सिर्फ आप ही करा सकते हो और कोई नहीं करा सकता है। तब जब वो लंका जाते हैं अपना सीता माँ को निकालने के लिए, और जलाने के पहले जाके वो शनि देव को जो है जाके बंधन से उनके जो है मुक्त करते हैं। तो शनि देव उनको बोलते हैं कि आप मांगो, क्या मांगना है। क्योंकि मतलब नेचुरली जब उन्होंने शनि देव को जो है बंधन से मुक्त कराया, तो शनि देव को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। देवताओं को ये पता होता है कि दुनिया में, इस सृष्टि में कोई भी चीज फ्री नहीं होती, कोई भी चीज मुफ्त की नहीं होती है, कहीं ना कहीं से तो आपसे लेंगे ही लेंगे। तो हनुमान जी तो प्रॉपर भक्त थे, एक के साधे सब साधे वाले थे, उनकी अपनी कोई इच्छा तो थी ही नहीं। तो उन्होंने क्या मांगा शनिदेव से, आप ये करो किसी तरह से सीता माँ जो है जल्दी से राम जी के पास पहुंच जाए।
इसमें भी जहां शनि देव से बड़ा मतलब कौन सा ग्रह हो सकता है जो क्या नहीं दे सकता इंसान को। शनि देव जैसे ग्रह भी आते हैं, बोलते हैं भैया मांगो क्या मांगना है, उसमें उन्होंने सिर्फ अपने इष्ट के लिए मांगा वरदान। ऐसा जो होता है ये होता है एके साधे सब साधे, वरना कोई नहीं। वरना आप लोग अर्जुन जैसा होते हो, अर्जुन का कभी एके साधे सब साधे नहीं था। ठीक है, सो ये होती है एक निष्ठा जो हनुमान जी ने दिखाई। तो शनिदेव बोलते हैं ठीक है ये हो जाएगा, इसमें तुम चिंता मत करो, और इसके अलावा आगे से तुम्हारे भक्तों को मैं कभी परेशान नहीं करूं। तो इसीलिए हनुमान जी की आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते। टेक्स्ट बुक में ये बात बहुत अच्छी है, जब आप किताब खोल के पढ़ो ये बात बहुत अच्छी लगती है, फिर लगता है यार करना क्या है, बहुत इजी है। रोज जाके हम लोग 11 हनुमान चालीसा कर लेते हैं, शनिदेव का प्रभाव तो हमारे पर पड़ेगा नहीं। बट एक चीज मैं बता दूं, शनिदेव कर्मों के देवता हैं। शनिदेव सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों का फल देते हैं। शनिदेव किसी को परेशान नहीं करते, किसी को नहीं सताते, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों का फल है। अगर आपके कर्म गड़बड़ होंगे तो आप कितनी भी आराधना करते रहो, रोज हनुमान चालीसा करो और रोज रात को जाके अपनी बीवी को पीटो, या रोज जाके चोरी करो। लोग हनुमान जी के मंदिरों में चोरी करते हैं, तो शनिदेव आपको क्या छोड़ देंगे? हनुमान जी की भक्ति मतलब हनुमान जी जैसा बन के दिखाओ, प्योर सात्विक, प्योर ब्रह्मचारी, तब शनिदेव आपको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए शनिवार के दिन जब हम नॉर्मल साधना भी करते हैं, मैं हमेशा जो पंचमुखी हनुमत कवच करती हूँ, वैसे नॉर्मली एवरी डे मैं पंचमुखी हनुमत कवच करती हूँ, बिकॉज बिना कवच के आप आगे की साधनाएं नहीं कर सकते हो। कवच के बिना आप जब 10वां विद्या साधना करने बैठोगे, आप लोगों को किसी ना किसी कवच का रोज पाठ करना अनिवार्य है। वो भी क्यों अनिवार्य है ये मैं जब टाइम आएगा तब बताऊंगी। बट अभी के लिए कम से कम पंचमुखी हनुमत कवच जो महाविद्या साधनाएं करें, जो नहीं करें महाविद्या साधना उनके लिए ठीक है भैया, आप लोग जैसे भी चल रहा है वैसे चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं राहु ग्रह पे। राहु ग्रह गए सूर्य भगवान को दबोचने, ग्रहण करने के लिए उनको, और हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी राहु ग्रह के पीछे पड़ गए सूर्य ग्रह को बचाने के लिए राहु ग्रह से। राहु ग्रह गए इंद्र के पास, तब जाके जो है किसी तरह से सारा मामला सॉल्व होता है, मतलब उसके बाद भी बहुत लंबी कहानी है। उसके बाद ये होता है भैया, हनुमान जी राहु ग्रह बोलते हैं कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आपके भक्तों को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि राहु ग्रह भी डर जाते हैं यार, ये कौन है जो मतलब छोड़ेगा नहीं मुझे आज। और राहु वरना असुर है, राइट, वो भी डर जाते हैं एक बार। और हनुमान जी को ये होता है यार, जिसने काम गड़बड़ किया नहीं, जिसने गलत काम किया नहीं, आप उसको क्यों परेशान करने आ रहे हो। तो जो सच्चा होता है, जो सत्य के रास्ते पे चलता है, उसको हनुमान जी हमेशा उसके साथ चलते हैं। एंड इसीलिए कलयुग में बहुत कम लोग सत्यवान होते हैं। सत्य मतलब किसी का लूटना नहीं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, बहुत कम लोग ऐसे होते। ऐसे लोगों के साथ हमेशा हनुमान जी चलते हैं। बट हनुमान जी, मैंने बोला जहां सत्य है वहां हनुमान जी हमेशा है, जहां सच्चा प्यार है वहां हनुमान जी हमेशा, जहां सच्ची भक्ति है वहां हनुमान जी हमेशा है। हनुमान जी को छल कपट बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो राहु क्या है, पूरा छल कपट है। राहु पूरी मिथ्या, राहु का काम ही है आपको गलत गलत चीजों की तरफ ले जाना, प्रेरित करना। राहु आए इसीलिए नवग्रह में ना, नहीं तो जरूरत नहीं थी। अगर उस रास्ते से बचाना, उस रास्ते पे ना जाना, या उस रास्ते पे जाके भी वापस आ जाना, ये काम करते हैं हनुमान जी। इसीलिए राहु और केतु दोनों के प्रभाव जो है हनुमान जी की आराधना से नहीं होते। एक और कहानी है कि रावण ने सारे नवग्रहों को जो है बांध दिया था, तब हनुमान जी ने जाके सारे नवग्रहों को जो है छुड़ाया। तब सारे नवग्रहों ने बोला हम आपको परेशान नहीं कर, आपके भक्तों को हम लोग परेशान नहीं करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को लगता है सिर्फ राहु केतु शनि परेशान करते हैं, बृहस्पति तो परेशान करते नहीं है। इसीलिए उन लोगों ने राहु केतु शनिवार के दिन ज्यादा हनुमान जी की साधना करवा दी। बट सारे ग्रह फल अच्छा भी देते हैं, बुरा भी देते हैं, वो अपने अपना कहाँ कहाँ लिखा के आए हैं उसके ऊपर। एक और गलत धारणा है, वो ये है कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं, औरतें हनुमान जी की मूर्ति को नहीं छू सकती हैं। वो भी किस लिए? क्योंकि हनुमान जी क्या है, बाल ब्रह्मचारी।
यार जो बाल ब्रह्मचारी है, जो अपने ही जीवन में जिसको किसी औरत को लेके कभी कोई इच्छा नहीं हुई, उसको क्या मैं जाके पैर छू लूंगी उनका मन डगमगा जाएगा? ऐसा हो सकता है? जिसके हृदय में सिर्फ राम है, जो राम के पास भी आया सीता को छुड़ाने के लिए, जो मतलब जिन्होंने सीता माँ को भी माँ जैसा देखा। सीता माँ वॉज वेरी ब्यूटीफुल, अगर आप पुराण पढ़े तो सीता माँ बहुत सुंदर थी। जिन्होंने कभी सीता माँ को गलत नजर से नहीं देखा, खुद भी अपनी माँ से ही पैदा हुए थे ना, ऐसा तो नहीं था कि वो अलग से आसमान से टपक गए थे हनुमान जी। तो जब अपनी माँ का क्या उन्होंने पैर नहीं छुआ होगा? सीता माँ का पैर नहीं छुआ, तो ऐसे अगर मैं जाके उनका पैर छू लूंगी तो क्या उनका ब्रह्मचर्य चला जाएगा? तो ये सब गलत धारणाएं हैं। जितना जप करना है करो। मैं हम लोगों को बचपन से गुरुजी ने जो है हनुमान चालीसा की आदत लगवाई थी। हर शनिवार को हम लोग, हमारे घर के पास एक हनुमान मंदिर था, जाके 11 हनुमान चालीसा का एक नियम था, वो करना ही पड़ता था। सो हनुमान जी की पूजा चाहे आप औरत हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मर्द हो, सब लोग कर सकते हैं। उनको इन सब चीजों से, छोटी मोटी चीजें, मतलब हनुमान जी को इस लेवल पे लाना, मुझे ये सब सोच के ही खराब लगता है कि यार मतलब इतने साल से क्या बना डाला इन लोगों ने। ठीक है, अब मैं एक बार ये सब इंग्लिश